بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر کافر اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر زندگی کی مدت مقرر کی اور اس کے ہاں ایک وقت قیامت کا مقرر ہے، پھر تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو کرتے ہو۔ اور ان کے پاس نہیں آئی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس میں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، سو جلد ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے اس کے قبل کتنی امتیں ہلاک کی؟ ہم نے انہیں ملک میں جمایا تھا، اقتدار دیا تھا، جتنا تمہیں نہیں جمایا اقتدار دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار برستا بادل بھیجا اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی نہریں۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتیں کھڑی کی، بدل دی۔ اور اگر ہم اتارے تم پر کاغذ میں لکھا ہوا، پھر وہ اس سے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لے، البتہ کافر کہیں گے یہ نہیں ہے مگر صرف کھلا جادو، اور کہتے ہیں اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم اسے آدمی ہی بناتے، اور ہم ان پر شبہ ڈالتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ اور البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ ہنسی کی گئی تو گھیر لیا ان میں سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، ملک میں سیر کرو، چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ کہہ دے، سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اپنے ذمے لے لی ہے۔ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے لیے ہے جو بستا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، کیا میں اللہ کے سوائے کسی اور کو کارساز بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہو جاؤں جس نے حکم مانا، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن میں عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن سے عذاب پھیر دیا جائے، تحقیق اس پر اللہ نے رحم کیا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں سختی پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس کو اس کے سوا، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ حکمت والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، سب سے بڑی گواہی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں، اور جس تک یہ پہنچے، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे मैं ऐसी गवाही नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे सिर्फ वह माबूद एकता है और मैं उससे बेजार हूँ जो तुम शिर्क करते हो। वह लोग जिन्हें हमने किताब दी वह उसको पहचानते हैं जैसे वह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने खसारे में डाला अपने आप को सो वह ईमान नहीं लाते। और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या झुठलाए उसकी आयतों को। बेशक जालिम फलाह कामयाबी नहीं पाते। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम कहेंगे मुशरिकों को कहा है तुम्हारे शरीक जिनका तुम दावा करते थे, फिर न होगी उनकी शरारत उनका उजर इसके सिवा कि वह कहेंगे हमारे रब अल्लाह की कसम हम मुशरिक न थे। देखो उन्होंने कैसे झूठ बांधा अपनी जानों पर और वह जो बातें बनाते थे उनसे खोई गई। और उनसे बाज आपकी तरफ कान लगाए रखते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह उसे न समझे और उनके कानों में बोझ है। और अगर वह देखे तमाम निशानियां फिर भी उस पर ईमान न लाएं। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हैं। कहते हैं वह लोग जिन्होंने कुफ्र किया काफिर यहाँ सिर्फ पहलों की कहानियाँ है और वह उससे दूसरों को रोकते हैं और खुद भी उससे भागते हैं और वह सिर्फ अपने आप को हलाक करते हैं और शऊर नहीं रखते। और कभी तुम देखो जब वह आग दोजख पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम वापस भेजे जाए और अपने रब की आयतों को न झुठलाएं और हो जाए ईमान वालों में से। बल्कि वह उससे कब्ल जो छुपाते थे उन पर जाहिर हो गया और वह अगर वापस भेजे जाए तो फिर वही करने लगे जिससे वह रोके गए और बेशक वह झूठ है। और कहते हैं हमारी सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम उठाए जाने वाले नहीं, हमें फिर जिंदा नहीं होना। और कभी तुम देखो जब वह अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे वह फरमाएगा क्या यह नहीं सच। वह कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम क्यों नहीं। वह फरमाएगा बस अजाब चखो इसलिए कि तुम कुफ्र करते थे। तहकीक वह लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह के मिलने को झुठलाया। यहाँ तक कि जब अचानक उन पर क़यामत आज पहुँची कहने लगे हाय हम पर अफसोस जो हमने उसमें कोताही की और वह अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। गवाह रहो बुरा है जो वह उठाएंगे। और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और जी का बेहालवा है और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेजगारी करते हैं। सो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। बेशक हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह बात जरूर रंजीदा करती है जो वह कहते हैं सो वह यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झुठलाते बल्कि जालिम लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और अलबत्ता रसूल झुठलाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बस उन्होंने सब्र किया उस पर जो वह झुठलाए गए और सताए गए यहाँ तक कि उन पर हमारी मदद आ गई और कोई बदलने वाला नहीं अल्लाह की बातों को। और अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रसूलों की कुछ खबरें पहुँच चुकी है और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गरा है उनका मुंह फेरना तो अगर तुमसे हो सके तो ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ निकालो फिर तुम उनके पास कोई निशानी ले आओ और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर जमा कर देता। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबरों में से न हो। मानते सिर्फ वो है जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा दोबारा जिंदा करेगा फिर वह उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। और वह कहते हैं कि उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे बेशक अल्लाह उस पर कादिर है कि वह उतारे निशानी लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। और ज़मीन में कोई चलने वाला हैवान नहीं और न कोई परिंदा जो अपने परों से उड़ता है मगर उनकी भी तुम्हारी तरह
जमाते हैं, हमने किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया वह बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, भला देखो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आया या तुम पर क़यामत आ जाए, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, बस जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो, अगर वह चाहे तो वह उसे दूर कर देता, और तुम भूल जाते हो जिसको तुम शरीक करते हो। ताकीक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर हमने उनकी नाफरमानी के सबब उन्हें पकड़ा सख्ती और तकलीफ में, ताकि वह गिड़गिड़ाए। फिर जब उन पर हमारा अजाब आया वह क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके लिए सख्त हो गए, और जो वह करते थे शैतान ने उनको आरास्ता कर दिखाया। फिर जब वह भूल गए वह नसीहत जो उन्हें की गई, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वह उससे खुश हो गए जो उन्हें दी गई, तो हमने उनको अचानक पकड़ा धर लिया। बस उस वक्त वह मायूस होकर रह गए। फिर जालिम कौम की जड़ काट दी गई, और हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है।